بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان کے گزر جانے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا فرماتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد مسلمان عید مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں میں عید منانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ دنیا میں سب سے پہلی عید کب اور کیوں منائی گئی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عید کا پورا اتہاس بتانے والے ہیں، جیسے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، سب سے پہلے عید کب اور کس نے منائی، اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی عید اس دن منائی گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن دنیا میں پہلی عید منائی گئی۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی جس روز حابل اور قابل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی عیسائیوں اسی دن کو عید کے طور پر مانتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں دیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد شوال کے دن عید مناتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد عید مناتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اور آپ جس عید کو منا رہے ہیں، اس عید کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی فتح کے بعد منائی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی تھی، اس لیے پھر آپ نے اس خوشی میں سب سے پہلی عید منائی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگوں دو جشن منایا کرتے تھے، اور اس دوران وہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلتے، اور یہی نہیں، اس کے موقع پر وہ میلہ بھی لگاتے تھے۔ لیکن پھر جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ شریف میں صرف اسلام کے مطابق اور صرف اسلامی طور طریقے پر زندگی کا گزر بسر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ دو تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے اس دریافت کیا، یعنی کہ ان کو پوچھا کہ یہ دو دن تم مناتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ، ہم زمانے جاہلیت سے ان میلوں کو اسی طرح سے مناتے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر دو دن مقرر دیے ہیں، پہلا دن عید الاضحیٰ کا اور دوسرا عید الفطر کا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتا دیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ عید الفطر کی شروعات کب ہوئی، جس کو ہم رمضان عید کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے جو
इससे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोज़ा रखते हैं, यानी इस महीने में 30 रोज़ा मुसलमान रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद का चांद होता है, यानी कि अल्लाह अलग चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फित्र का ऐलान कर दिया जाता है। याद रहे दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ही नाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की खुशी और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, तो ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा पूरे कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम अता करता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्श और इनाम की इस ईद को ईद उल फित्र की कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ, यानी कि हमेशा मोहब्बत से मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन एक खास पैगाम ये भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी किया करो। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे, तो आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों के पास में एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ है। उस बच्चे को देखकर आपने कदम मुबारक वहीं पर रोक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और उससे पूछने लगे कि बेटा, सब बच्चे खुश से खेल रहे हैं, मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है, मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझसे भी मेरी माँ नहलाकर नए कपड़े पहना और फिर भी खुशी खुशी के साथ इन बच्चों के साथ खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही बातें सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन बैठा हूँ। बस इतना सुनना था कि अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, है बेटे, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुम्हें अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा कि आज से हज़रत आयशा तुम्हारी माँ है, हज़रत फातिमा तुम्हारी बहन है और हज़रत हुसैन तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ आयशा, इस बच्चे को नहला दो, ये बच्चा यतीम है। ये सुनकर फिर हज़रत आयशा ने उस बच्चे को नहलाया दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के 2 टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर पैबंद की तरह बांध दिया और दूसरे कपड़े से उस बच्चे को उठा
दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत आयशा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की और सुरमा लगाया और खुशबू भी लगाया। फिर जब वो बच्चा तैयार हुआ तो वो बहुत खुश हो गया। फिर वो बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में चल पड़ा। तो फिर ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाने लगे कि आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधों पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया और इस ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पहुँचे जहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधे पर उस बच्चे को देखा जिसके वो अपने साथ खिला नहीं रहे थे। वो बच्चे तो ना उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईद की नमाज के लिए ईदगाह में ले जा रहे हैं। अब मैं यतीम नहीं रहा, अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया हूँ। ये सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी हमें भी अपने कंधों पर बिठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे को साथ लेकर ईदगाह में पहुंच गए और फिर जब आप पैगंबर मेंबर पर चढ़ने लगे तो वो बच्चा नीचे बैठा लगा। ये देखकर फिर आपने उस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मेंबर पर बैठोगे। फिर जब आप मेंबर पर बैठे तो उस बच्चे को भी अपने पास बिठाया लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितनी भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में उतनी ही ज़्यादा नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मजीद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में उस तरह के साथ में होंगे जिस तरह से हाथ की दोनों उंगलियां साथ होती हैं। फिर आपने अपने दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, ये है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है बल्कि अपने आसपास में सबको खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वालों बच्चों के लिए भी कुछ सोचते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं होता है? मगर आपके पास भी ऐसी यतीम बच्चे और गरीब बच्चियां रहती हैं तो आप उनका ख्याल जरूर रखें। अल्लाह ताला हम आपको खूब अजर दे। वीडियो अच्छा लगा है तो आप से दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ईद से पहले ज़्यादा से शेयर ज़रूर करें।